ओम शांति। आज के बाबार 24/11/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष पॉइंट बाबा बोलছেন बच्चे তোমরা 2500 বছর নানান রকম দুঃখ পেয়েছো, তো অনেক সময় তোমাদের নষ্ট হয়েছে। এবার তো দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে, তাই তোমরা বাবাকে স্মরণ করো এবং সত্যপ্রধান হও, তাহলে তোমাদের সময় সফল হয়ে যাবে। তারপরে বাবা বলছেন যে 21 জন্মের লটারি পাওয়ার জন্য কি করতে হবে। তো বাবা বললেন 21 জন্মের লটারি পাওয়ার জন্য বিশেষ মোহজিত হওয়ার পুরুষার্থ করো, বাবার উপরে একদম কুরবান হয়ে যাও এবং সুদামার মতো নিজের যা কিছু আছে সেটা বাবার সেবায় সফল করো, তার পরিবর্তে তোমরা সত্যযুগের বাদশাহী পেয়ে যাবে। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে এখানকার যারা কোটিপতি, যারা লক্ষপতি, তো তাদেরকে যখন জ্ঞান দেওয়া হয় তখন তারা বলে আমাদের কাছে সময় নেই, তো তারা বাবার জ্ঞান শুনতে চায় না। কিন্তু তারা জানেই না যে আমাদের সমস্ত কিছু বিনাশ হয়ে যাবে, আর যদি আমরা বাবার অবিনাশী জ্ঞানরত্ন ধারণ না করি তাহলে আমরা কিছুই পাবো না, সব কিছু আমাদের ফাঁকাই থেকে যাবে। কেন এই ধন সম্পত্তি তো আমাদের সঙ্গে যাবে না। কিন্তু যারা বাবার জ্ঞানের এক একটা রত্ন শুনছে, জ্ঞানের এক একটা পয়েंट শুনছে, तो तारा ये अविनाशी ज्ञान धन पावे। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। बाबा बोलছেন যে তোমরা দুঃখ সহ্য করতে অনেক সময় নষ্ট করেছো, এবার দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, শতপ্রধান হও, তাহলে টাইম সফল হয়ে যাবে। আজকের প্রশ্ন, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। বাবা জিজ্ঞেস করছেন 21 জন্মের জন্য লটারি প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ কি আছে। তো বাবা উত্তরে বলছেন 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजीत बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ, सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा सब समय এটা মনে রাখো যে দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে, हम नई दुनिया में जा रहे हैं, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। বাবা সুদামার মতন তোমার যা কিছু আছে চাল মুঠো সেটাও বাবার সেবায় সফল করে তুমি সত্যযুগের বাদশাহী নাও, আর এই পূর্ণ দুনিয়ার দিকে একদম তোমাকে দেখতেই হবে না। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो, यह है विचित्र बात। बाबा বলছেন परमात्मार संगे आत्मादेर मिलन এই संगम जुगे একবারই হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিচিত্র কথা, দুনিয়াতে কেউ জানে না। तो विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं। বাউছেন 84 লক্ষ জনি জীব জন্তু পশু পাখি যারাই আছে আত্মা সবার মধ্যেই আছে, কিন্তু মনুষ্য আত্মাকে 84 লক্ষ জনির মধ্যে ভ্রমণ করতে হয় না। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में, यहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। বলছেন যে দুঃখে সময় নষ্ট হচ্ছে,
किन्तु सुखे केउ बोलबे ना जे आमार समय नष्ट होच्छे, सुखेर दिन खूब ताड़ाताड़ी चले जाए। तो यह भी तुम समझते हो, इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। बाबा बोलছেন এই দুঃখের রাজ্যে মানুষের কোনো জীবনের মূল্যই নেই, যখন তখন মারা পড়ছে, আর্থকুয়েকে বা কোনো রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অ্যাক্সিডেন্টে যখন তখন মানুষ মরে যাচ্ছে। तो अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं, वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पद्मपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। বা বলছেন যে মানুষ টাকা ইনকাম করতে এত ব্যস্ত যে কোটিপতি পদমপতি মানুষকে যদি বলা হয় যে বাবাকে স্মরণ করো, বাবাকে স্মরণ করলেই তোমার 2500 বছরের প্রারব্ধ তৈরি হচ্ছে, তো বলছে টাকা ইনকাম করার এত নেশা যে তারা বাবার কথা শুনবেই না। तो उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा। বলছেন তাদের বুদ্ধিতেই বসবে যাদের কল্প আগে এই জ্ঞানটা বুদ্ধিতে বসেছিল। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी यह दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार। इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। বাবা বলছেন যে তোমরা পুরুষার্থ করতে চাইছো কিন্তু মায়া তোমাদেরকে পুরুষার্থ করতে দেয় না, নানান রকম মনের মধ্যে বাধা ক্রিয়েট করে। তারপরে আমরা কি ভাবি যে এটাই ড্রামা ছিল আমার জন্যে। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। বলছেন মুখ থেকে শিব বাবা বলা তো খুবই সহজ, কিন্তু মনের মধ্যে বাবাকে সবসময় স্মরণে রাখা আর বাবার বর্ষাকে স্মরণে রাখা এটাই হচ্ছে মেন পুরুষার্থ। तो बाबा माना ही वर्षा, शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता है। বাবা বলছেন আজকাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকেও ফাদার বলে দেওয়া হয়, তারপরে রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীকে বলা হয়েছে, বা কোনো মানুষকে গুরুকে জগৎগুরু বলে দেওয়া হয়। তো বাবা বলছেন কোনো মানুষ সারা জগতের পিতাও হতে পারে না আর সারা জগতের গুরুও হতে পারে না। সারা জগতের পিতা একমাত্র শিব বাবা, সারা জগতের গুরু একমাত্র শিব বাবা। तो अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य कैसे हो सकता है। जबकि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो ज़रूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। বাবা বলছেন যে এটা না যে পুরো দুনিয়ায় প্রলয় হয়ে যাবে তারপরে আমি একটা নতুন সৃষ্টি রচনা করব,
তা না, বাবা বলছেন আমি পূর্ণ দুনিয়াতেই আসি, আর পূর্ণ দুনিয়াতে এসেই আমি নতুন সৃষ্টির কলম লাগাই, তারপরে পূর্ণ দুনিয়া বিনাশ হয় আর তারপরে নতুন দুনিয়ার আরম্ভ হয়ে যায়। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। শাস্ত্রে দেখেছে যে পুরো সৃষ্টি জলমগ্ন হয়ে গেছিল, তারপরে একটা পিপলের পাতায় কৃষ্ণ আঙ্গুঠা চুষতে চুষতে এসেছিল। তো বাবা বলছে যে এরকম কিছু হয় না, এই ভারতবর্ষের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হবে আর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই তখন সত্যযুগের আরম্ভ হবে। तो गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो न सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना, यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई बिरला ही मुझे समझते हैं। বাবা বলছে আমি যা আছি যেমন আছি, কেউ বিরলই আমাকে যথার্থভাবে বুঝতে পারে। तो वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে মানুষ আমাকে এটা বলে ডাকেনি যে তুমি আমাকে বিশ্বের বাদশাহী দাও, বিশ্বের মালিক বানাও। বাবাকে সবাই আমরা ডেকেছি যে তুমি এসে আমাদেরকে পাবন বানাও, আমাদের পতিতকে উদ্ধার করো, বিষয় বিকার থেকে মুক্ত করো। तो भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গের অনেক কথা তোমরা জন্ম জন্মান্তর শুনে এসেছো, কিন্তু আসল সত্যনারায়ণের কথা আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में हैं। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। বাবা বলছেন খ্রিস্টানদের একরকমই চার্চ সারা বিশ্বে আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তো বিভিন্ন দেবী দেবতাদের মন্দির আছে। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। বাবা বলছেন ভারতবর্ষে এত মন্দির, এত দেবী দেবতা, এত মন্দিরের বিভিন্ন রকম বিগ্রহ যে বিদেশিরাও আসে এখানে মন্দির দেখতে। तो विचारों को यह पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज़ होती नहीं। वह तो समझते हैं लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली। बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वह है अभ्यभिचारी पूजा। বাবা বলছেন অনেকেরা ভাবে যে ভারতবর্ষের যে মন্দিরগুলো সেখানে পুরনো পুরনো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, যাদের বয়স হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বছর, কিন্তু বাবা বলছেন যে 5000 বছরের পুরনো কিছুই নেই, এবং যতগুলো মন্দির, যতগুলো দেবী দেবতা বিগ্রহ সব 2500 বছরের ভিতরেই আছে। কেন? সত্যযুগ ত্রেতা যুগে তো কোনো মন্দির ছিল না বা কোনো দেবী দেবতাকে
পূজ্য রূপে চিত্র ছিল না যে যাদের মূর্তি থাকবে আর আমরা তাদেরকে পুজো করছি, এরকম কিছু নেই। কেন? সত্যযুগ ত্রেতাতে আমরা নিজেরাই পূজ্য ছিলাম এবং चैतन्य रूपे छिलाम, आमादेर कोनो जड़ो मूर्ति छिलो ना। तो बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वह है अभ्यभिचारी पूजा। वैसे ही अभ्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अभ्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। बाबा बोलছেন প্রথমে যখন শিবের পুজো আরম্ভ হয়েছিল তো সেটাকে অব্যভিচারী পুজো বলা হবে, তারপরে বিভিন্ন দেবী দেবতাকে পুজো করা এটা হচ্ছে ব্যভিচারী পূজা। तो वैसे ही अभ्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। तो एक बाबार श्रीमत के बोला হবে अभ्यभिचारी ज्ञान, और 10 জন गुरु गोसाईर मते चला एटाके बोला হবে व्यभिचारी मते चला। तो पहले अभ्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। बाबा आगे तो शुधु एकमात्र शिव बाबार पुजो हतो सारा भारतवर्षे, तारपरे विभिन्न देवी देवता, तारपरे एखन प्रकृतिर पंचतत्व क्षिति अवतेज मरद भूम सबारই पुजो होच्छे। तो अभी बेहद का बाप कहते तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया है, कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। तो इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। भक्ति मार्गे तुम्हारा कत मंदिर बानिয়েছো, कत वेद शास्त्र, कत सामग्री, कत गीता तुम्हारा बानिয়েছো। तो ये सब करते करते तुम्हारा अनेक टाका खर्च कर दिएছো। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए। कल की ही तो बात है ना, तुम भी समझते हो बरोबर। हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। बाबा बोलছেন আমি বারবার তোমাদেরকে अटेंशन দিচ্ছি যে তোমরা पुरुषार्थ करो, समय তোমরা নষ্ট করো না। তো পুরুষার্থ করানোর জন্য বাবা সারা দিনে কত শ্রীমত দিচ্ছেন। तो कोई कोई अक्षर ठीक हैं, प्रायः कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। বলছে এখন তোমরা বাবার কাজে এত সহযোগী হচ্ছ, তারপরে ভক্তি মার্গেই তোমাদের एक्यूरेट यादगार হবে, তোমাদের পুজো হবে। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहाँ सब तुम नया बनाएंगे। বলছে এখন যা দেখছো সব কিছু এই ভূমিকম্পে সব শেষ হয়ে যাবে, তারপরে সত্যযুগে সব কিছু তোমরা নতুন বানাবে। हुनर तो वहाँ रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर है। यहाँ भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। बाबा बोलছেন যে হীরা কাটারও একটা বিশেষ আর্ট আছে, কলা আছে। তো যারা হিরে কাটে তারা আবার হীরের বিভিন্ন রকম ডিজাইন দেয়। তো যারা হিরে কাটে তাদেরকে বাবা এক্সপার্ট বলছেন। তো সেরকমই সত্যযুগে যাবে সেই শিল্পীরা, তারা সত্যযুগে বিভিন্ন রত্ন মুক্ত হীরা এসব দিয়ে আমাদের महलमाड़ी साजावे। तो वहाँ यह सब हुनर जाएगा, तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी तो है इनसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। बाबा बोलছেন যে ভারতবর্ষে হিরে জওয়ারাতের খুব ফ্যাশন, এখানে রয়্যাল ফ্যামিলি বেশি, তো তারা জুয়েলারি খুব পরতে পছন্দ করে। তো বাবা বলছে এগুলোই परंपरा अनुसारे चले আসছে। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए,
तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। बाबा আবার আজকে বলছেন बच्चे दैवी गुण धारण करो, रोज दिन रातेर बेला निजेर चार्ट चेक करो जे आमी कोनो आसुरी कर्तव्य करिनी तो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी। यह भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध। अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। स्वराज्य पावार जन्य एखुन आमरा ज्ञान यज्ञे निजेर सबकिछु स्वाहा करछे, ओम आत्मा परम धाम पर्यन्त दौड़ी लागाच्छे। तो अब वापिस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते बच्चे खूब मेहनत करो। राजाई मिलती है, कम बात थोड़े ही है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। বলছে খুব তন মন ধন দ্বারা তোমরা সেবা করো, পুরুষার্থ করো, যোগ লাগাও, তো তোমরা যত পরিশ্রম করবে তত তোমরা সত্যযুগ দুনিয়াতে উঁচু পদ পাবে। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठें। तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब हैं जब पहला मकान पुराना होता है, तो वहाँ किराए पर देने की तो बात नहीं। वैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। বলছে মানুষ এখন বিজ্ঞানের যুগে এতটা এগিয়ে গেছে যে তারা চন্দ্রমাতে প্লট নেওয়ার চেষ্টা করছে, মানে জমি কেনার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের এই মানে যে প্ল্যান সেটা সব কিছু বিফল হয়ে যাবে। আর তোমরা তো সত্যযুগে প্লট নিচ্ছ, মানে সত্যযুগে তোমাদের মহল তৈরি হবে। তোমরা যত পুরুষার্থ করবে বড় বড় মহল তোমাদের অধিকারে চলে আসবে। तो जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं यह सब व्यर्थ हैं। বলছে চন্দ্রমাতে ওরা যে প্লট নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সব কিছু ব্যর্থ। কেন? এই চেষ্টা তাদের পূর্ণ হবে না। यही चीज़ें जो सुख देने वाली है वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। বলছে তারা অন্তরিক্ষ যান অন্তরিক্ষে পাঠাচ্ছে, আকাশে পাঠাচ্ছে বা বিভিন্ন স্যাটেলাইট তৈরি করেছে, আকাশে পাঠাচ্ছে, কিন্তু তাদের এই সমস্ত বিজ্ঞানের সাধন তাদেরই অন্ত করার জন্য নিমিত্ত হয়ে যাবে, দুঃখ দেওয়ার জন্য নিমিত্ত হবে। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बम से ही फटाफट काम होता जाएगा। वैसे जो तो विनाशेर समय काछे आसबे तो मिलिट्री डिफेंस आर्मी ये सब कम हो जाबे और एक एकटा बोमा मिसाइल द्वाराई एक एकटा देश ध्वंस हो जाबे। तो यह ड्रामा बना हुआ है। वैसे ड्रामाते एटाई आछे नूद। तो समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। मजा है देखने का। बाबा बोलছেন যে বিনাশ কিভাবে হবে এটাও দেখার একটা মজা আছে। अब तुम फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होना है।
বলছে তোমরা তো এখন ফেরেশতা হয়ে যাচ্ছ, এই দুনিয়ার সঙ্গে তো এখন তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আর তোমরা জানো যে আমাদের জন্যই তো বিনাশ হচ্ছে। এই দুনিয়া বিনাশ না হলে সত্যযুগ দুনিয়া আসবে কি করে। तो ड्रामा में पाठ है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है, जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। আমরা এখন দেবী সংস্কার ভরছি আমাদের মধ্যে, যেটা সত্যযুগ দুনিয়াতে আমাদের কাজে লাগবে। তো জন্ম ভি জরুর ভারত में लेंगे, আমাদের জন্মটাও ভারতবর্ষেই হবে, বিদেশে না। কেন অন্য কোনো খণ্ড তো থাকবেই না, সারা বিশ্বে একমাত্র ভারত খণ্ডই থাকবে। তো जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो, जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। ভাবছে যদি এখনও তোমাদের দেহ যদি তোমরা ছেড়ে দাও তাহলে ভালো পরিবারে, ধার্মিক পরিবারে তোমাদের জন্ম হবে। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे, तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म, मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं ना। বলছে সত্যযুগের দেবী দেবতাদেরকে যারা রিসিভ করবে সেরকম যোগী আত্মাও তো চাই, তো তারা এখন অ্যাডভান্স পার্টিতে চলে যাচ্ছে। तो बाप समझाते अब यह दुनिया बदल रही है, बाप ने तो साक्षात्कार कराया है, बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे यह 10-20 लाख क्या है। अल्लाह को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। এটা ব্রহ্মা বাবার নিজের অনুভব বলছেন যে আমি তো যখন সাক্ষাৎকার করলাম যে আমি নিজেই নারায়ণ হব, তো 21 জন্মের আমি রাজ্যপদ পাচ্ছি, তাহলে তার আগে এই 10-20 লক্ষ টাকার ব্যবসা কি আছে। তো উনি কী করলেন, নিজেকে বাবার সেবায় অর্পণ করলেন আর বন্ধুকে ব্যবসা দিয়ে দিলেন। তো উনি পেলেন এমনি হিরে ব্যবসায়ের মানে যে গদাই বাবা বলছেন, আর বাবা তো পাচ্ছেন বাদশাহী। तो भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। तो जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो, तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वह सब है बेगर्स, तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं, थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। বলছেন একটুখানি যদি জ্ঞান শুনেছে আর খুব ভালো ভালো বলেছে, স্বীকার করেছে, তো বাবা বলছে তারাও প্রজাতে চলে আসবে। হয়তো ত্রেতা যুগেরই প্রজা হবে, কিন্তু তারা প্রজাতে চলে আসবে। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। বলছেন কাউকে তুমি যদি বাবার পরিচয় দিচ্ছ এটা কোনো সাধারণ কথা নয়, কিন্তু कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे, কারো কারো তো একদম রোম রোম পুলকিত হয়ে যাবে যে ভগবান এসে গেছেন ধরাধামে, স্বয়ং ভগবান যাকে আমরা এত দিন থেকে খুঁজছিলাম সে ভগবান এসে গেছেন। তো শুনেই তাদের মন খুশিতে একদম আনন্দিত হয়ে যাবে। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है, कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना।
বলছে বাবার যখন নতুন বাড়ি হয় তখন অনেক গরিব বাচ্চারা বাবার কাছে 1 টাকাও পাঠিয়ে দেয় যে বাবা একটা ইট তো কিনতে পাওয়া যাবে। তো বাবা বলছেন এটাই তো গায়ন আছে, মহিমা আছে যে সুদামার মুঠো চাল কৃষ্ণ নিয়েছিল আর তার পরিবর্তে তাকে মহল দিয়েছিল। তো বাবার সেবাতে যারা গরিব বাচ্চারা 1 মুঠো যদি কিছু দিয়ে দেয় তো বাবা তাদেরকে রিটার্নে 21 জন্মের জন্য विशाल बड़ो महल मारी देवें सत्ययुगे। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा 1 रुपया नहीं, यह तो हीरे जवाहर हैं। बोले तुम्हारे 1 टाका ना, এটা तो बाबार জন্য এটা हीरा। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है, तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया है, यह दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो, मोहजीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है? रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य वर्षंस हैं। इस पर रूप बसंत की कथा है ना, तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। बाबा बोलছেন বাবার এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন অনেক অমূল্য, এক একটা জ্ঞান রত্নের লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্য। বাবা বলছেন তো এখন তোমরা রূপ বসন্ত হচ্ছ, রূপ মানা যোগী আর বসন্ত মানা জ্ঞানী। তো আমরা এখন জ্ঞানী আত্মা, যোগী আত্মা হচ্ছি। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার জন্য মুখ্য সার। 1 नंबर पॉइंट, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। বাবা বলছেন এই শরীর দ্বারা নতুন করে কোনো বিকর্ম করো না। ऐसा कोई आसुरी एक्ट न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। বলছে এমন কোনো আসুরি অ্যাক্টিভিটিতে থাকো না যাতে তোমার रजिस्टर व चार्ट खराब हो जावे। 2 नंबर, एक बाप की याद के नशे में रहना है, पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। एक बाबार यादेर नेशाय थाकते हबे एवं पवित्र होवार मूल पुरुषार्थ अवश्य करते हबे। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। বলছে সামান্য টাকা পয়সার জন্যে নিজের অমূল্য সময় নষ্ট না করে শ্রীমত দ্বারা জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে। আজকের বরদান, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। বলছে নিজেকে মোল্ড করে রিয়েল গোল্ড হও, তাতে তুমি প্রত্যেক কাজে সফল হবে। আর এর জন্য তোমাকে स्वपरिवर्तन করতে হবে। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है। বলছে অন্য পরিবর্তন হবে তারপরে আমি পরিবর্তন হব এটা না, কেউ পরিবর্তন হোক না হোক আমাকে হতে হবে। হে অর্জুন মুঝে बनना है। বলছেন হে অর্জুন আমাকে হতে হবে। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता। এটাতে যে সর্বপ্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করে তো বাবা বলছে সেই প্রথম নম্বরে আসবে বা সেই হবে আসল অর্জুন। क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। বাবা বলছেন যে নিজেকে মোল্ড করতে পারবে সেই হবে রিয়েল গোল্ড, আর রিয়েল গোল্ড কি হি ভ্যালু है। আর সাচ্চা সোনা তারই মূল্য তো আছে না। আজকের স্লোগান,
अपने जीवन श्रेष्ठ के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। भाव छे निजेर जीवन के एत महान एत ऊँचू बनाओ एत श्रेष्ठ बनाओ जे तुम्हार जीवन के देखे बाबा प्रत्यक्ष हो जा। ओम शांति।